See, this is 12ab square, abx square minus 9a square x plus minus minus plus 8b square x minus 6ab. Now a and x can be taken as common, and from 12 you can take 3, and so the common in between these two is 3ax. When 3ax is out, you will have 4bx here minus 3a, 4bx minus 3a. Here you can take 2 as common, and b 2b can be taken out, and here you have 4b x again minus 3a. So easily you got same thing in both of the terms. Their product is 0. Now 4bx minus 3a is equal to 0. X is equal to 3a by 4b. And from here, x is equal to minus 2b by 3a. So here we have 2x. So you solved it. Done. Note कर लीजिए इसको. The next question is solve x. The question is x into x plus 1 plus x plus 2 into x plus 3 is equal to 42. Is it a quadratic? कैसे? यहाँ तो सबके पावर 1 दिख रहा है. How can you say it's quadratic? When you multiply these two terms, you will get x square term here and an x square term here also. So this will be a quadratic. This is a quadratic. तो नोट कीजिए और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी ट्राई कीजिए. So very easily you get a quadratic equation after a few multiplication. Now the solution of this is very easy. 6 square plus 3x minus 6x or minus 3x plus 6x plus 6x यहाँ लिखिए minus 3x so 3x and their multiplication is minus 18x square. So this factor works. x plus 6 and x minus 3 ये आएगा and x minus 3 x plus 6 x minus 3 x plus 6 is equal to 0. So from here we have x is equal to 3 and x is equal to minus 6. Answer. If you want to see whether your answer is correct or not, you can put the answers in the question and see that 42 is
here if you putting at 3 and solving, you will get 42. Then your answer is right. So put x is equal to 3 here. So it is just I'm verifying the results. 3 into 3 plus 1 plus 3 plus 2, 3 plus 3. This is 12, this is 30. It is 42, which is on the right hand side. So your answer is absolutely right. Sometimes question is written like solve a quadratic equation with completing square method. This is a quadratic equation and solve it by completing a square method. Completing स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व कीजिए. तो हाउ टू डू? अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, फिर से करते हैं. X square minus 8x is equal to 0. So here it is easy to find it out that it is 2 into x into 4. And so it is 8x. I have made is 2ab. So a I have taken from here. And b के लिए कौन है? 4 है. तो यहाँ पे b स्क्वायर कर दिया. b स्क्वायर कर दिया तो क्या किया? इधर भी b स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा. तो यहाँ तो बन गया x माइनस 4 होल स्क्वायर और ये 16 इधर आ गया. या फिर 16 को वही रहने दो. तो x minus 4 will become plus 4 और minus 4. ये होगा ना, x minus 4 square is equal to 4 square. x minus 4 is equal to, एक स्टेप और लिखिए, x minus 4 square is equal to 4 square. x minus 4 is equal to plus minus 4. Now x is equal to plus 4 plus minus 4. यहाँ माइनस वाला इधर आके प्लस 4 हो जाएगा. x की दो वैल्यू आएगी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ. आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ 0 पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा, यानी कि आंसर सही है. और मैं 8 पुट करूंगा तब भी 0 आ जाएगा, यानी ये भी आंसर सही है. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ऐसे ही कर. कोई डाउट है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एक और कीजिए आप. एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 एक्स प्लस 4. एक्स 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 प्लस 3. 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 प्लस 3. This is the question. Solve this quadratic by completing square method. Completing a square method. सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 2x है
4x square has that can be written as 2x square plus 2 into 2x. चलो यहाँ 4 बन गया, 2 into 2x 4 बन गया, और बीच में क्या 4 3 4 into root 3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया b प्लस √3 का स्क्वायर लेना होगा। हम क्या देख रहे हैं, √3 का स्क्वायर इज ऑलरेडी देयर, तो नथिंग नीड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, जो था वो परफेक्ट स्क्वायर ही था पहले से। 2x plus √3 whole square is equal to 0. Now it is 2x plus √3 का स्क्वायर 0 होगा, तो 2x plus √3 भी 0 ही होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस √3/2। देयर इज ओनली वन वैल्यू। जो लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं वो गलत कहते हैं। क्वाड्रेटिक का 1 रूट भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक का 0 रूट भी हो सकता है। तो इस जैसे आप इसका रूट निकालिए, x² plus x plus 1 क्या होगा इसका रूट? जरा चारा मेथड से निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस b² minus 4ac, b² minus 4ac by 2a, x is equal to minus b plus minus 1 minus 4 root by 2। तो जो ये जो आ गया, can you solve it further? No, this is not real. So x is not real. There is no any x for which this is equal to 0. No solution. So you got a quadratic having 0 solution. You got a quadratic having only one solution, and there are so many quadratic having 2 solutions, right? So quadratic equation can have 0 solution, 1 solution, or 2 solutions, right? So what can we write? There can be a maximum 2 solution for a quadratic equation. There can be a maximum 2 solutions for a quadratic equation. Never says that quadratic has 2 solutions. Quadratic always have 2 solutions. Now, quadratic equation can have 2 solutions maximum. It can have 1 solution, 0 solution, right? ऐसे है। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए, जैसे यहाँ हुआ, तो बोलेंगे नो रियल सॉल्यूशन, हम डिस्कस कर चुके हैं। और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो एक सॉल्यूशन, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो 2 सॉल्यूशन। उसको हम फिर से एक बार एनालाइज कर लेते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक का रूट होता है माइनस बी प्लस माइनस √d/4a, ये होता है। तो अगर कंडीशन ले लो, इफ d इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 0 एंड माइनस 0। दोनों केस में क्या हो रहा है, माइनस बी प्लस 0 एंड माइनस बी माइनस 0। दोनों केस में क्या हो रहा है, ये 2a होता है, minus b/2a and minus b/2a, they are not different, so we can write, क्योंकि यहाँ पे 0 माइनस करो या 0 प्लस करो, आंसर तो वही आएगा ना, माइनस b/2a। इसलिए इस केस में हम लिखेंगे सिर्फ माइनस b/2a। तो if d is equal to 0, x is equal to minus b/2a, the only solution। when d is equal to 0, ये इसका पार्ट ही खत्म, तो कुछ ऐड ही नहीं हो रहा, तो माइनस b में कुछ ऐड ही नहीं हो रहा, तो माइनस b/2 आंसर होगा। तो सिर्फ एक आंसर होगा, only one root when d is equal to 0। ओके, जब d निगेटिव हो तो क्या होगा, सोचो, if d is less than 0, तो x is minus b plus √d/2a। तो d तो निगेटिव है तो यहाँ पुट करने पे तो ये पूरा नॉन रियल हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर तो नेगेटिव नंबर हम पुट ही नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे बोलेंगे नो सॉल्यूशन, नो रियल रूट, नो रियल रूट। ओके, नेक्स्ट है, इफ d इज पॉजिटिव, जो हमारा सबका फेवरेबल है, इसमें x इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस रूट डी एंड माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो यहाँ पे माइनस बी में एक बार रूट डी ऐड करोगे और एक बार रूट डी सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यू विल हैव टू वैल्यूज फॉर एक्स। एक बार रूट डी ऐड करोगे, एक बार रूट डी सब्ट्रैक्ट करोगे, टू वैल्यूज। तो हम बोलेंगे टू सॉल्यूशंस इन दिस केस। तो बाय लुकिंग एट द इक्वेशन, जैसे हमने ये इक्वेशन देखा था, we can find its determinant and accordingly we can say that it has zero solution, one solution or two solution. So when it has one solution, in that case d is equal to 0, or in that case the graph is like this, ये ऐसे x axis को टच करके निकलता है या ऐसे x axis को टच करके निकलता है। When d is negative, इसका ग्राफ ऐसे आ जाता है, मतलब x को टच नहीं करता, ये ऊपर ऊपर ही चला जाता है, या ऐसे या ऐसे या ऐसे, कैसे भी ये टच नहीं करेगा x को, बस d नेगेटिव होने पे। यानी कि जब x को टच नहीं करेगा, यानी कि इसका कोई जीरो नहीं है। आपको तो पता ही है ना कि पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि जब फंक्शन इसको टच करे x को, तभी वहीं पे जीरो होता है। तो यहाँ पे ये टच कर रहा है तो जीरो होगा, एक जीरो, और यहाँ पे टच ही नहीं कर रहा x को, कोई जीरो नहीं होगा, कोई रूट्स नहीं होगा। बट यहाँ पे कैसा होता है, ऐसा होता है। देयर आर टू पॉइंट्स वेयर द ग्राफ टचेस x एक्सिस, so there are two solutions here। यहाँ पे ऐसा ग्राफ होगा या ऐसा ग्राफ होगा, दो पॉइंट है जहाँ पे टच करेगा, कैसे भी, जैसा भी हो सकता है, दो पॉइंट है जहाँ टच करेगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो दो रूट्स हैं, इन सब में डी पॉजिटिव। एक और मैं बता देता हूँ कि अगर इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर a पॉजिटिव हुआ, ग्राफ अपवर्ड होता है। जो अपवर्ड दिख रहा है यहाँ पे a पॉजिटिव होगा, यहाँ जो अपवर्ड है ये a पॉजिटिव होगा, कुछ सोचना ही नहीं है, जहां भी अपवर्ड ग्राफ है वो a पॉजिटिव होगा, यानी ये पॉजिटिव होगा। जैसे हमने ग्राफ ये क्वेश्चन लिखा था x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये पॉजिटिव होगा, 1 पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा इसका, ठीक। तो when a is positive, graph is upward. Next is when a is negative, when a is negative, graph is downward, graph is open downward। तो ये नोट कर लीजिए, 11th में और डिटेल में आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये एनालिसिस हो गया। अब आगे सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक, फाइंड सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लेट मी सी, ये सही लिखा मैंने, यानी 2x square plus x plus 4 is equal to 0, yes, by completing a square method solve it। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कैसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड करें यहाँ पे,
टू एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, रूट टू एक्स का स्क्वायर, ऐसे करें या कुछ और, फिर रूट टू यहाँ पे कैसे आएगा, ठीक है, सोचो क्या करना है। One thing we can do here, we can take 2 as common and then we will have x square plus x by 2 plus 2. इसके बाद हम परफेक्ट इसका बना सकते हैं बिकॉज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और d की वैल्यू क्या है यहाँ हाफ है, यहाँ 1/4 ले लो, 1/4 लेने पे ये x by 2 ही रहेगा, देख सकते हैं आप, ये 2 तो 0 के साथ खत्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस here it is 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/4 स्क्वायर, 2 तो पहले से ही है रहने दो, and is equal to 1/4 square here also. 1 second. Yes, yes. कुछ गड़बड़ है, ये हो गया x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 माइनस 2। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये निगेटिव आ जाएगा, तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर अगर निगेटिव आता है तो हम क्या बोलते हैं कि कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। स्क्वायर इज अ नेगेटिव नंबर तो लिखेंगे x हैज नो वैल्यू और नो सॉल्यूशन, तो किसी मेथड से करो इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहाँ पे सॉल्यूशन ना आए। और दूसरा तरीका क्या तरीका था इसको फाइंड करने का कि हम इक्वेशन को देखते ही हम बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, कैसे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, अगर डी नेगेटिव आ गया तो बोल देंगे सॉल्यूशन नहीं, तो डी नेगेटिव आने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना, बी कितना है 1 स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है 2, सी कितना है 4, तो 1 माइनस 16 इंटू 2 32, तो माइनस 31, तो डी इज नेगेटिव, तो नो सॉल्यूशन। ये भी तरीका है, किसी भी तरीके से देखो you will be getting same thing. Solve this, a square b square x square minus 4b power 4 minus 3a power 4 x minus 12 a square b square is equal to 0. Solve for x.
Very simple it is. Take this a square b square x square minus 4b power 4x plus 3a power 4x minus 12a square b square. This is equal to 0. Now taken b square x can be taken out. यहाँ पे बन जाएगा a square x minus 4 b square. यहाँ पे 3 कॉमन a square बाहर ले लिया, ये हो जाएगा a square x minus 4b square. A square x minus 4b square b square x minus 3a square. So once this is equal to 0 and this is also 0. यहाँ पे x की वैल्यू हो गई, दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो एक बार ये 0 है या तो ये 0 होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4b square by a square and here 3a square by b square. So x की तो वैल्यू आ गई आसानी से. Consider an equation, general equation ax square plus bx plus c is equal to 0. इसके आगे क्या हो रहा है दिखाते हैं, इसको नोट कर लीजिए. देखो इसके बाद का इक्वेशन क्या होगा, हमने a कॉमन ले लिया या a से डिवाइड कर दिया सबको. जब हम a से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा a by a b by a c by a. ओके, कुछ समय पहले यानी लास्ट क्लास में हमने ये किया हुआ था कि we had two roots x is equal to minus b plus root b by 2a and x is equal to minus b minus root b by 2a. हमें ये दो रूट गिवन था, हम अल्फा बीटा कर लो, दोनों को ऐड कर दो अल्फा प्लस बीटा, कितना हो जाएगा, ऐड करो माइनस बी बाई 2a प्लस रूट डी माइनस बी बाई 2a माइनस रूट डी प्लस रूट डी माइनस रूट डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स माइनस बी बाई 2a. तो दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई a. तो हमने ये फाइंड भी किया था कि सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी बाई a. और इसी तरीके से जब इनको प्रोडक्ट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हो जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा और इस तरीके से हमें मिलेगा c बाई a. यहाँ पे यही c बाई a है तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा और यहाँ b बाई a को क्या लिख सकता हूँ माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा और x तो था इससे b बाई a को रिप्लेस किया माइनस ऑफ अल्फा बीटा से एंड c बाई a को अल्फा बीटा से और x स्क्वायर. So this equation is reducible to this, easy है. और अल्फा प्लस बीटा is what? अल्फा प्लस बीटा is sum of roots, sum of zeros या sum of roots, and alpha into beta is product of roots. And this is equal to what? 0. So हमारा नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इज इक्वल टू 0. यानी कि अगर आपको सम ऑफ रूट्स पता हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं. मतलब रिवर्स कहानी, पहले आपको इक्वेशन पता था और रूट्स को फाइंड करते थे, अभी रूट्स अगर पता है तो वी कैन फाइंड इक्वेशन. अगर आपको अल्फा बीटा पता है तो उनका एडिशन करके हम सम का वैल्यू ले लेंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन करके प्रोडक्ट का वैल्यू ले लेंगे और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose two roots are 3 and -3.
whose two roots are 3 and -3। तो कितना आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, बस हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर 3 - 3 0, तो 0 हटा दो, 0 इंटू एक्स खत्म, और यहाँ 3 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -9। एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। तो ये ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। कैसे बना ये भी मैंने आपको बता दिया। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिखिए फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 3 plus root 3 and 3 minus root 3। Find a quadratic equation whose roots are 3 plus root 3 and 3 minus root 3। तो यही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कीजिए, सम का मतलब इन दोनों को ऐड करना है, रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। और प्रोडक्ट करो, इनको प्रोडक्ट करो, a x प्लस वाई यानी 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3, a स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 3 6। हो गया आंसर। तो विद द हेल्प ऑफ गिवन रूट्स वी कैन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन से रूट को फाइंड करने आता है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फिर दरचारा मेथड। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में रूट्स गिवन है और वहां से मुझे इक्वेशन फाइंड करना है, तो भी हम फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Find a quadratic equation whose roots are 1 plus root 5 and 1 minus root 5। दो रूट ऐसे गिवन है। आप ध्यान देना, जब भी वो देंगे इस तरीके का, तो ऐसा नहीं देंगे कि 1 प्लस रूट 5 और दूसरा दे दिया 3 माइनस रूट 5। वो ऐसा ही देंगे, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 ही रहेगा। ये हमेशा पेयर में रहता है। आप लिखिए इररेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर, लिख लीजिए इररेशनल रूट्स always remain in pair। क्यों ऐसा होता है मैं बताता हूँ। जैसे हम यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है। सपोज d की वैल्यू 5 है और b 1 है, तो क्या होगा, -1 प्लस रूट 5 बाई 2, या a की वैल्यू कुछ है 2 ही, 1 ही रहने दो। तो दूसरा क्या बनेगा, -1 माइनस रूट 5 बाई 2, यानी कि ये तो बदलेगा नहीं ना, और ये भी नहीं बदलेगा, सिर्फ माइनस साइन बदल रहा है। इसीलिए एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस, ये 2 अलग से नहीं आएगा, ये वही रहेगा। आप समझ पा रहे हो कि रूट डी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना, और इसके साथ ये एडिशन होकर बदल भी नहीं रहा है। ये रैशनल होता सबको कुछ अलग होता, तो इसके लिए पेयर में आता है। रैशनल रूट्स ऑलवेज रिमेन इन पेयर, ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन में भी आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा 1 प्लस रूट 5 एंड 1 माइनस रूट 5, यही दो रूट्स हैं। तो कैसे बनाएंगे इक्वेशन, सिमिलरली सम ऑफ रूट, सम क्या होगा इसका 2 हो जाएगा, सम करके देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, प्रोडक्ट क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्रोडक्ट करो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 4, प्रोडक्ट इज -4। तो आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो given two roots we can find the quadratic equation। ये चीज क्लियर हो गई। अब हमें और आगे बढ़ना है, बढ़ते हैं। और हमें क्वाड्रेटिक में अब अलग अलग तरीके के इक्वेशन सॉल्व करने हैं। पावर 4 होगा उसको भी सॉल्व करना है, और कुछ अलग तरीके के होंगे उसको क्वाड्रेटिक में चेंज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये हमने क्या पढ़ा, फाइंडिंग इक्वेशन। क्या पढ़ा हमने, फाइंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन।
रूट्स आर गिवन, ये हमने पढ़ा। इसको कैसे सॉल्व करें? यहाँ पे पावर 4 है, ट्राई कीजिए। वी हैव 1 मिनट। देखिए कैसे करेंगे। इफ एक्स स्क्वायर को तुम वाई ले लो तो क्या होगा? वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 26 वाई प्लस 25, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 26 वाई प्लस 25। अब इसको सॉल्व करना है। वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 25 वाई प्लस 25, ऐसे ही करेंगे ना। वाई कैन बी टेकन आउट, इन दोनों में 25 कॉमन ले लेंगे, तुम्हारे पास आ जाएगा वाई माइनस 1 and y minus 25 is equal to 0. Now we have y is equal to 1 and y is equal to 25. And what is y? Y is x square. Now x is equal to plus minus 1 and x is equal to plus minus 5. So 4 values are there for x. 4 values are there for x. Sometimes you will observe if you go through that x क्यू का कोई इक्वेशन अगर आपको मिलता है ना, कभी आप करना ऐसा कुछ इक्वेशन, कुछ भी मुझे ये ढंग से याद नहीं, तो इसके मैक्सिमम 3 सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि इफ देयर इज पावर 3 तो इट कैन हैव मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन। अगर पावर 4 है तो मैक्सिमम 4 सॉल्यूशन मिल सकते हैं, पावर 2 है तो मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन मिल सकते हैं। लीनियर इक्वेशन है, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा ना, सिंपल है। तो क्या देखा हमने कि जितने पावर होते हैं उतने सॉल्यूशन मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर कोई पावर 5 पूछ ले, ऐसा करके कोई सॉल्यूशन हो, क्वेश्चन हो, तो इसके 5 सॉल्यूशन होने के चांसेस हैं। देयर कैन बी मैक्सिमम 5 सॉल्यूशन, राइट? या एक ऐसा आप खुद कीजिए, z पावर 4 माइनस 10z स्क्वायर प्लस 9। ठीक है सर,
बताइए जेड की क्या वैल्यू होगी। आपको बोलने में हेजिटेशन है, लिख के बताइए। सिमिलरली वी कैन डू दिस। जेड स्क्वायर को हमने कुछ और वेरिएबल ले लिया, जेड स्क्वायर को टी ले लिया, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 90 प्लस 9, टी कॉमन, टी माइनस 1 माइनस 9 टी माइनस 1, टी माइनस 1 टी माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो इधर टी इज इक्वल टू 1 और टी इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो सेम प्रोसेस, t is equal to 1, t is equal to 9, t stands for x square, so x is equal to plus minus 1 and x is equal to plus minus 3. The four solutions are minus 1 plus 1 minus 3 plus 3. So we are solving different type of quadratic. तो नोट कीजिए, एक और टाइप आज हो सकता है, क्योंकि हमने लेट स्टार्ट किया था, लेकिन आपके नेक्स्ट क्लासेस को टाइम से रखना है, सो आई हैव टू एंड इट विद टाइम। इसको सॉल्व कीजिए। रूट एक्स 1 प्लस 2x, रूट एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 1, रूट एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कीजिए। रूट एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 1। ध्यान दे रहा है आपको, रूट एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। ठीक है, अब रूट एक्स से तो सॉल्यूशन करना मुश्किल है, तो व्हाट वी शुड डू, वी कैन स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दिस विल बिकम x और ये क्या है 1 माइनस 2x का स्क्वायर।
रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स हो जाएगा, 1 माइनस 2 एक्स का स्क्वायर करेंगे 2 माइनस 2 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। Now after this, x a square plus b square minus 2ab. So this is 4x square minus 5x plus 1. This is equal to 0. Right? अब इसको सॉल्व करना है। तो आई थिंक अभी क्वाड्रेटिक बन गया है, अच्छा खासा क्वाड्रेटिक। अब तो सॉल्व कर ही सकते हैं। मिडिल टर्म फैक्टराइज किया, आगे बढ़े, ऐसे सॉल्व कर लिए, हो गया। सो ऐसे टाइप की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कैसे चेंज किया गया, वही है स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये इंपॉर्टेंट। जब भी रूट दिखाई दे तो हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हमारा वो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाएगा वो इक्वेशन। तो अब इसको आगे सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट तक ले आए। दिस इज 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 प्लस 1। यहाँ पे x कॉमन ले लिया, क्या हो गया 4x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन ले लिया 4x माइनस 1। अब ये हो गया x माइनस 1 and 4x minus 1 is equal to 0. This implies x is equal to 1 and x is equal to 1 by बस यहाँ से x1 आ जाएगा और यहाँ से 4x is equal to 1 तो x is equal to 1 by। तो ये सॉल्व करने तो हमेशा आएगा, ऐसे सॉल्व करने तो आपको आना ही चाहिए। इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद इसको कर सकते हैं। इसको पहले इसमें रिड्यूस किया, फिर इसको सॉल्व। क्वेश्चन लिखिए। If one root of the quadratic equation is, if one root of the equation is 3 plus root 5, if one root is 3 plus root 5, find the quadratic equation. Find the quadratic equation. If one root is 3 plus root 5, find the quadratic equation. From question, what can we observe? सोचिए थोड़ा सा कि एक रूट 3 प्लस रूट 5 है, तो एक रूट से तो क्वाड्रेटिक बनता नहीं है ना। तो फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फ्रेम करना है आपको, यू नीड टू रूट्स। एक रूट से नहीं होगा, यू नीड टू रूट, दो रूट चाहिए। दूसरा रूट कैसे मिलेगा? क्या पहला रूट दूसरे रूट को फाइंड करने में हेल्प कर सकता है? ऐसा कुछ होता है? हाँ जी, हमने देखा था कि माइनस बी प्लस रूट टी होता है और माइनस बी माइनस रूट टी होता है। यानी कि अगर ये पता है तो इसको पता करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जस्ट पुट नेगेटिव साइन ओवर देयर, वहां सिर्फ नेगेटिव साइन आपको लगाना है। यानी कि अगर एक रूट 3 प्लस रूट 5 है तो द सेकंड रूट मस्ट बी 3 माइनस रूट 5। यस, if one root is 3 plus root 5, another root must be 3 minus root 5, right? हाँ, तो इस तरह से आपको दो रूट मिल गए, 3 plus root 5 and 3 minus root 5। इनका सम क्या होगा? सम ऑफ रूट। दोनों को ऐड करो, 3 plus 3 कितना हो जाएगा? 6। अच्छे से ऐड करो, 3 plus root 5 plus 3 minus root 5, root 5 gets cancelled and answer is 6।
प्रोडक्ट ऑफ रूट a plus root 5 into 3 minus root 5, so a plus b, a minus b, a square minus b square, 9 minus 5, 4. Product of roots is 4, sum of root is 6, so you get everything, and the equation must be x square minus sum of roots into x plus product of roots. तो x स्क्वायर माइनस सम का क्या मतलब है 6 और प्रोडक्ट का मतलब 4 बन गया, यानी कि सिर्फ एक रूट गिवन हो इरेशनल, तो इरेशनल से हम दो रूट फाइंड कर सकते हैं और व्हेन यू गेट टू रूट्स वहां से हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। One more question I would write on the board. X plus 5 by x is equal to 6. इसको कीजिए, solve this. Just note this and after that solve this. X plus 5 by x is equal to 6. इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कई क्वाड्रेटिक है, कई क्वाड्रेटिक में चेंज किया जा सकता है। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई एक्स इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 6x। देखो सिंपल सा सॉल्यूशन है, कोई बड़ी बात नहीं। अब ये क्वाड्रेटिक आराम से बनता हुआ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या किया, सिंपल, यहाँ पे 1 रखा, 1 और x का एलसीएम, फिर ऐसे 1x x स्क्वायर, ये सिंपल बात है, आपको पता होना चाहिए, पता ही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। अब इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या मिल रहा है तुम्हें, यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 0 एक बार, x माइनस 5 0 एक बार, तो x इज 1 एंड x इज 5। आंसर क्या होगा, x इज 1 एंड 5। तो हर तरह के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, जिसको भी हम क्वाड्रेटिक में चेंज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, तो रिड्यूस करके हम आसानी सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, या फिर नहीं है तो बाद में पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन करते रहिए। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, दूसरी क्लास को टाइम से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू इतनी शांति से क्लास को अंजाम देने के लिए।